Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 11 of Surveying 2 theory course. In this lecture, we will start our new chapter, which is about the photogrammetry. So, see, in surveying, actually, we are finding out the relative position of different points on the surface of Earth. I mean, that is the basic definition of surveying, that to determine the relative position of different points on the surface of Earth is called surveying. Okay, मीन इंजीनियरिंग सर्वेइंग मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है ए, now with respect to this A point, if we define point B, ठीक है, so it will be the relative position of point B. For example, if we say that कि B जो है ये A से कितने horizontal distance पे हैं और कितने y distance पे हैं, so that will be a kind of coordinate with respect to A, ठीक है. So we can define the position of any point either by linear measurements or angular measurements or both. And if we define the position of a point with respect to the previous point, it is called the consecutive position. And if we define the position of all point with respect to some common origin, that are called the independent position. So generally, we can summarize it to determine the position of different points on the surface of Earth is called surveying. Now ये position जो होते हैं ये हम find करते हैं या determine करते हैं by means of different methods and by using different equipments. So in surveying, actually, we have two type of works. One is called the field work and second one is called the office work. So in field work, we are observing, we are collecting data, we are measuring the angular and linear observation, ठीक है. So field work में हमारे पास जो थे, we are collecting data, we are measuring, या we are observing data. And in office work, then we are extracting information from the collected data, ठीक है. उससे फिर हम फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, उसके ऊपर कंप्यूटेशंस करते हैं. तो एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट्स होते हैं, एक हमारे पास कैलकुलेशन या कंप्यूटेशंस होते हैं. सो फील्ड में हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ दैट डेटा इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ चेन, देन वी कॉल्ड इट चेन सर्वे. And if that data is collected with the help of tape, we called it tape survey. And if that data is observed or measured with the help of theodolite, then we called it theodolite survey. मतलब ये है फॉर एग्जांपल कि हम जो भी मेथड यूज करते हैं या जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं फॉर द कलेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, वी कॉल्ड इट दैट टाइप ऑफ सर्वे. तो फिर उसके ऊपर हम कुछ कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस करते हैं. एट द एंड हमारे पास क्या होता है कि देन वी आर एबल टू प्रिपेयर द मैप और प्लान ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया, एंड व्हिच इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग. हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ना कि हम एक स्पेसिफिक एरिया का मैप या प्लान प्रिपेयर कर सके. फॉर दैट वी आर ऑब्जर्विंग द data in the field with the help of different equipment. Now, if the map of the area is prepared with the help of photographs, for example, अगर हम किसी एरिया की photograph ले लें with the help of some suitable camera, और फिर उन photograph से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ले, उनसे कंप्यूटेशंस कर लें, उनसे कैलकुलेशंस कर लें, और उसकी बेस पे हम मैप या प्लान प्रिपेयर कर ले किसी भी एरिया का, दैट इज कॉल्ड फोटोग्रामेट्री. ठीक है. जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि अगर हम किसी भी इक्विपमेंट से या किसी मेथड के जरिए डेटा कलेक्ट करके मैप ड्रॉ करते तो हम उसको दैट टाइप ऑफ सर्वे कहते हैं. तो अगर हम मैप जो हैं वो फोटोग्राफ से प्रिपेयर कर ले, जो किसी एरिया का हम फोटोग्राफ ले ले और फिर उससे हम मैप प्रिपेयर कर लें, दैट विल बी कॉल्ड द photogrammetry, or that is called the photographic surveying. So in this lecture, we will discuss different topics in which we will learn that how we will extract the different information from the photographs.
So first we will have some brief introduction about the photogrammetry. Then we will discuss the main types of photogrammetry, and then we will discuss the stereoscopy. So as we have discussed that photographic surveying, that is also called the photogrammetry, that is a method of surveying in which the maps are prepared from photographs which are taken at a suitable camera. मीन सपोज अगर आप इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, इसका मैप प्रिपेयर करना चाहते हैं, इसका प्लान प्रिपेयर करना चाहते हैं, टोपोग्राफिक मैप प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो हम क्या करते हैं कि फोटोग्राफ्स लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा. जिस तरह हम किसी अदर सर्वे में चेन यूज करते हैं, टेप यूज करते हैं या थेडोलाइट यूज करते हैं, तो सिमिलरली कैमरा के जरिए हम फोटोग्राफ्स लेते हैं और उन फोटोग्राफ से फिर हम मैप्स और प्लान प्रिपेयर करते हैं. दैट इज कॉल्ड द फोटोग्रामेट्री या दैट इज कॉल्ड द photographic surveying. The photogrammetry is a sign of making measurements. ठीक है, जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि अगर आपके पास फोटोग्राफ्स आ जाएं तो फोटोग्राफ में जो 2 पॉइंट्स होंगे that will be also actually available on the ground. तो अब फोटोग्राफ से अगर हम मेजरमेंट के जरिए ये एक्चुअल डिस्टेंस मेजर कर ले, ठीक है, so that will be a kind of linear measurements which we have computed from the photographs, which we have calculated from the photographs. So with the help of that linear measurements, then we can define the position of one point with respect to another point. So actually we are making measurements from photographs. That is called photogrammetry, or the science, art and technology for obtaining the reliable information from photographs. Again, see, what are the reliable information? The data which is required for the preparation of maps or plans. Again, हमें linear measurements required होते हैं, हमें coordinates required होते हैं, या जो भी accurate information हमें required होता है किसी भी area की plane या map prepare करने के लिए. If that information is retrieved from the photographs, it will be called photogrammetry. और photogrammetry जो है, it is also a science, it is also an art, it is also a technology. Science is in terms of extracting information by applying some mathematical concepts and mathematical equations. ठीक है, अगर आपके पास साइंटिफिक और मैथमेटिकल नॉलेज ना हो तो फिर आप फोटोग्राफ से वो रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. That is also a kind of art, because उन इंफॉर्मेशन से फिर हम मैप प्रिपेयर करते हैं, हम स्केचिंग करते हैं या प्लान्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं, तो ये एक आर्ट में आ जाता है. एंड फोटोग्रामेट्री जो इसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है, बिकॉज वी हैव टू टेक द फोटोग्राफ्स विद द कैमरा. सो अब अगर कोई कैमरा ऑपरेट नहीं कर सकता, फोटोग्राफ्स नहीं ले सकता, सो देन that person cannot prepare the maps from the photographs. So कैमरास को ऑपरेट करना, या अगर मीन प्लेन को अगर एयर से आप फोटोग्राफ्स लेते हैं तो प्लेन को ऑपरेट करना या ड्रोन को ऑपरेट करना, यू विल हैव आल्सो सम टेक्नोलॉजिकल नॉलेज. सो फोटोग्रामेट्री जो है इसमें साइंस भी इन्वॉल्व है, आर्ट भी इन्वॉल्व है एंड टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है. सो इसकी बेस पे हम फोटोग्राफ से required information obtained करते हैं which is necessary for the maps or plans preparation, which is called the photogrammetry. ठीक है. The uses of photogrammetry is that it is suitable for small scale mapping of open, hilly or mountainous area. मीन जो भी एरिया हो आपके साथ, अगर ओपन एरिया हो या हिली एरिया हो और उसकी आप स्मॉल स्केल मैप प्रिपेयर करना चाहते हैं, सो द फोटोग्रामेट्री विल बी रिकमेंडेड फॉर इट. मोस्टली टोपोग्राफिकल मैप्स जो होते हैं, दोज मैप्स विच आर डिफाइनिंग द फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब भी हम रिकॉनेसेंस सर्वे करते हैं या प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं किसी भी रूट प्रोजेक्ट के लिए, दीज आर द रूट्स प्रोजेक्ट, जो रोड्स हैं, रेलवेज हैं, पाइपलाइंस हैं, केनाल्स हैं, सेवरेज हैं, ये रूट प्रोजेक्ट है. ठीक है. सो जब भी आप किसी एरिया में ये प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपने पहले रिकॉनेसेंस सर्वे करनी होती है, प्रिलिमिनरी सर्वे करना होता है कि आया ये प्रोजेक्ट जो है इस एरिया में पॉसिबल है कि नहीं है.
और अगर पॉसिबल है तो उसका अलाइनमेंट क्या होगा, उसका सेंटर लाइन क्या होगा, उसका पाथ क्या होगा, मीन रोड कहाँ से पास होगा. So for that purposes, if you have the proper photographs of that area, then you can recommend it that either the project is suitable in the area or not. So the photogrammetry can be used for the preliminary survey of any engineering project. मीन आप इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की सुटेबिलिटी को देखते हैं किसी एरिया में, तो आपके पास उस एरिया का फोटोग्राफ्स होनी चाहिए. Also, as we have discussed that photogrammetry can be used for preparing the topographic maps. Actually, these maps are showing the different features of the earth surface. कि plain area कहाँ पे है, slope area कहाँ पे है, hills कहाँ पे हैं, ठीक है, तो ups and downs कहाँ पे हैं. तो अर्थ सरफेस की फीचर्स को जब हम किसी मैप में रिप्रेजेंट करते हैं तो जनरली उसको हम टोपोग्राफिक मैप कहते हैं. सो अगर आपके पास किसी एरिया का फोटोग्राफ अवेलेबल हो, सो यू कैन टेक दैट इंफॉर्मेशन. Similarly, the photogrammetry can be used to determine या to compute or calculate the coordinates of a point. ठीक है, मीन अगर आपके पास किसी एरिया का फोटोग्राफ अवेलेबल है तो फोटोग्राफ से डिफरेंट पॉइंट के दरमियान हम डिस्टेंस मेजर करते हैं और फिर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए हम जो है एक पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू सम common origin. So photogrammetry can also be used for the computation of coordinates of different points. That can be also used for the definition of the shoreline in hydrographic survey. देखिए shoreline जो है ये वाटर बॉडी का लैंड सरफेस के साथ जो कनेक्टेड लाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड द शोर लाइन. मीन वाटर बॉडी लैंड के साथ किस तरह मीट हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है, जिगजैग लाइन है, रफ लाइन है, ठीक है. तो उसकी शोर लाइन को डिफाइन करने के लिए अगेन दैट कैन बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द फोटोग्राफ. अगर किसी वाटर बॉडी की फोटोग्राफ आपके पास अवेलेबल है तो उससे आप ये डिफाइन कर सकते हैं ना कि इस वाटर बॉडी का शोर लाइन क्या है, बाउंड्री के साथ उसका कनेक्शन किस तरह है. The photogrammetry is used to determine the precise ground coordinates. Similarly, जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कंट्रोल पॉइंट्स एस्टेब्लिश करने होते हैं, वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट्स एंड हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स, व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन आवर लेक्चर नंबर 8. जो रेफरेंस पॉइंट्स हमारे पास होते हैं जिसके बेस पे फिर हम अदर पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं. तो ये कंट्रोल पॉइंट्स पहले इस्टेब्लिश करने होंगे ना, तो कंट्रोल पॉइंट्स की इस्टेब्लिशमेंट के लिए वी कैन यूज फोटोग्रामेट्री. इट इज यूज टू डेवलप द मैप्स एंड क्रॉस सेक्शन. जिस तरह हमने डिस्कस की कि यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स प्रोजेक्ट हैं उनकी अलाइनमेंट्स को डिफाइन करना, या रोड जो है उसका एक स्पेसिफिक विड्थ होता है तो उसकी राइट सेक्शन क्रॉस सेक्शन और लेफ्ट क्रॉस सेक्शन उसको डिफाइन करना, ठीक है. अलाइनमेंट, सेंटर लाइन या पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट को डिफाइन करने के लिए we can utilize photogrammetry. And most importantly, photogrammetry can also be used in the non-engineering fields. For example, geology. अगर आप किसी एरिया की जियोलॉजी में इंटरेस्टेड है कि यहाँ पे किस टाइप के रॉक्स अवेलेबल हैं, या हार्ड रॉक्स हैं, सॉफ्ट रॉक्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड हैं, ठीक है. Also we can define the forestry. मीन अगर किसी एरिया का फोटोग्राफ अवेलेबल है, so again we can extract that information कि कितने परसेंटेज में फॉरेस्ट्री है, कितने परसेंटेज जो है अर्बन एरिया है. एग्रीकल्चर के बारे में भी वी कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन कि कितने परसेंट एरिया में क्रॉप्स हैं, कितने परसेंट में सपोज ऑर्चर्ड्स हैं, ठीक है. कंजर्वेशन, प्लानिंग, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट. मीन अगर किसी सिटी के फोटोग्राफ अवेलेबल हैं, सो अगेन वी कैन से दैट के कौन से एरिया में रोड्स अवेलेबल है, ठीक है, मैनेजमेंट क्या है ट्रैफिक का. सो फॉर दैट पर्पसेस वी कैन यूज द photogrammetry. It can also be used for inaccessible region. And see, this is the main objective. This is the main use of photogrammetry. कि photogrammetry हम कब recommend करते हैं, तो जो एरिया जो है इनएक्सेसिबल हो, फॉरबिडन एरिया हो या अनहेल्दी एरिया हो, जहां पे आप फिजिकली नहीं जा सकते,
फिजिकली आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए इंफॉर्मेशन या मेजरमेंट्स नहीं ले सकते, तो फिर उसके फोटोग्राफ्स ले लें और फोटोग्राफ के जरिए इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके मैप्स और प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द recommendation of photogrammetry, that when an area is inaccessible for physical collection of observation, then the photogrammetry will be used. So this is just some uses of the photogrammetry. Now majorly photogrammetry जो है that is divided into two classes. One is called terrestrial photogrammetry या ground photogrammetry, या that is called the horizontal photogrammetry. See, when the axis of the telescope, देखिए अगर हमारे पास एक कैमरा है ना, तो इसमें एक आई पीस होगा और एक ऑब्जेक्टिव पीस होगा। तो ऑब्जेक्टिव पीस के सेंटर पॉइंट को आई पीस के सेंटर पॉइंट के साथ ज्वाइन कर ले, सो ये क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, जो जनरली हम थियोडोलाइट में कहते हैं। यहाँ पे एक्सिस ऑफ द कैमरा होगा। नाउ यहाँ पे जो डायफ्राम होता है जहाँ पे रेस कन्वर्ज होते हैं, सेंटर ऑफ द कैमरा जो है, उसको अगर हम ऑब्जेक्टिव पीस के साथ ज्वाइन कर ले और उसकी जो कंटिन्यूएशन है, दैट इज कॉल्ड line of sight, yeah, that is called line of collimation. So when the line of collimation is in the horizontal plane, that will be called, और उसके जरिए फिर हम फोटोग्राफ्स ले रहे, तो उन फोटोग्राफ्स को हम हॉरिजॉन्टल फोटोग्राफ्स कहते हैं, और इनसे जो इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो सर्वे करेंगे, वो हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री होगा या टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री होगा। या व्हेन दी, देखें हमारे पास ये अर्थ हैं, यहाँ पे अगर एक ऑब्जर्वर है, एक सर्वेयर है जो कैमरा के जरिए फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, तो सपोज इफ एक्सिस ऑफ द कैमरा इज टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ अर्थ, देन दिस फोटोग्रामेट्री विल बी कॉल्ड टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री। या वी कैन से दैट, सपोज अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है, इसको आप सेंटर के साथ ज्वाइन कर ले, तो ये क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल लाइन होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल लाइन। सो व्हेन द एक्सिस ऑफ द कैमरा is perpendicular to the gravitational line, तो उसकी जरिए आप जो फोटोग्रामेट्री करेंगे वो टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री होगा। जिस तरह सपोज अगर हम ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और हम कैमरा के जरिए फोटोग्राफ ले रहे हैं ना, कि उसका जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल हो, तो ये टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री होगा। सेकंड जो है हमारे पास एरियल फोटोग्रामेट्री है या वर्टिकल फोटोग्रामेट्री है। सो अगेन फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर, देखिए यहां से हम ऊपर से नीचे ये जो एरिया इसका फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट जो है या एक्सिस ऑफ कैमरा जो है वो परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, मीन डायरेक्ट टू द रेडियस ऑफ द अर्थ है, अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो ये जो फोटोग्रामेट्री है इसको वर्टिकल फोटोग्रामेट्री कहते हैं। मीन अगर स्पेस से हम अर्थ सरफेस की फोटोग्राफ ले लें, तो देखिए अगर ये अर्थ है, यहाँ पे कैमरा है, ये ऊपर से आप फोटोग्राफ ले रहे हैं, सो एक्सिस ऑफ द कैमरा क्या होगा, इट विल बी अलोंग द ग्रेविटेशनल लाइन। सो ये जो फोटोग्रामेट्री होती है दैट इज कॉल्ड एरियल फोटोग्रामेट्री। when the axis of the camera is along the gravitational line, या when the axis of the camera is along the radial line, that photogrammetry will be called the vertical photogrammetry। ठीक है। एक और टर्म हम यूज करते हैं स्टीरियोस्कोपी, या दैट इज कॉल्ड स्टीरियोफोटोग्रामेट्री। इट कैन बी टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री और इट कैन बी एरियल फोटोग्रामेट्री। देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट को एट अ टाइम हम दो डिफरेंट पोजीशन से उसकी फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, एट अ टाइम एक ऑब्जेक्ट को हम दो डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो ये जो ऑब्जर्वेशन होता है इसको स्टेरियोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। या एट अ टाइम अगर आप एक ऑब्जेक्ट की दो फोटोग्राफ ले लें डिफरेंट पोजीशन से, तो ये जो फोटोग्रामेट्री होगा दैट इज कॉल्ड स्टीरियो फोटोग्रामेट्री या दैट इज कॉल्ड स्टीरियोस्कोपी। और ये जो दो फोटोग्राफ्स आ जाते हैं हमारे पास, दीज आर कॉल्ड स्टीरियो पेयर्स, इनको स्टीरियो पेयर्स कहते हैं। इसका जो सिंपल एग्जांपल है वो ह्यूमन आईज हैं। ठीक है, हमारे दो आंखें हैं, तो हम जब भी देखते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को हम दो डिफरेंट जगहों से ऑब्जर्व करते हैं, दो डिफरेंट आईज से ऑब्जर्व करते हैं। अगर एक आंख आप बंद कर लें तो एक आंख से आपको जो ऑब्जेक्ट नजर आएगा
वो दूसरी आंख से उसी तरह नजर नहीं आएगा, वो डिफरेंट नजर आएगा। तो एट अ टाइम हम एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो ये जो फोटोग्रामेट्री है, अगर इसको हम कैमरा से लिंक कर ले कि एक जगह को आप दो डिफरेंट कैमरा से एट अ टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड स्टीरियोस्कोपी या स्टीरियो फोटोग्रामेट्री। अगेन ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो नाउ जो टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री है या हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री है, इन दिस फोटोग्रामेट्री द मैप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्राउंड फोटोग्राफ्स या द मैप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ। यहाँ पे देखिए ये कैमरा है ना, सो एक्सिस ऑफ द कैमरा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। सो ये जो फोटोग्राफ्स आएगा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव प्लेट पे या पॉजिटिव प्लेट पे जो फोटोग्राफ बनता है, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ्स। In the terrestrial photogrammetry implies photographs taken from the point of the earth surface, mean earth surface के ऊपर हम कैमरा फिक्स करके उसका जो एक्सिस होते हैं वो ग्रेविटेशनल लाइन को परपेंडिकुलर होते हैं, देन वी आर टेकिंग द फोटोग्राफ्स और उससे फिर हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो ये टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री होगा, ठीक है। और देखिए जनरली फोटोग्रामेट्री जो है ये प्लेनटेबलिंग का एडवांस फॉर्म है। इफ यू पीपल हैव स्टडीड इट इन सर्विंग वन कोर्स, तो प्लेनटेबलिंग में फील्ड वर्क ज्यादा होता है, उसी जगह पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करते हैं और प्लॉट भी करते हैं। फोटोग्रामेट्री जो है ये प्लेनटेबलिंग का एक एडवांस फॉर्म है जिसमें हम जस्ट फोटोग्राफ्स लेते हैं और फिर ऑफिस में उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है फोटोग्रामेट्री में वो स्केल है, ठीक है। यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है ए विच इज ऑन द ग्राउंड, मीन फिजिकल एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ए पॉइंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है, और ये हमारे पास सपोज पॉइंट के है। Now these are the 3 point, these are the actual 3 points और ये सेम प्लेन में है। सेम प्लेन में मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पे हमारे पास कैमरा हो तो ये कैमरा से ऑल ऑफ दीज 3 पॉइंट जो है ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ए बी और के जो है ये एक्चुअल पॉइंट्स हैं ग्राउंड के ऊपर, और ये कैमरा यहाँ पे हमने कैमरा फिक्स किया हुआ है तो कैमरा से ये इक्वल डिस्टेंस पे है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये कैमरा स्टेशन से सपोज डी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे, बिकॉज अगर ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे तो ये कैमरा स्टेशन से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए बी के दरमियान दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड कैपिटल वाई, और बी के दरमियान ये एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ग्राउंड के ऊपर। अब यहाँ पे पॉइंट सपोज पॉइंट ओ जो है दैट इज द पॉइंट फ्रॉम विच वी आर टेकिंग द फोटोग्राफ्स, मीन ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इन पॉइंट से कैमरा तक रेज आते हैं, ठीक है, जिसको हम रेज कहते हैं। इस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होंगे, एक रे जो है पॉइंट ए से आएगा, एक रे जो है पॉइंट बी से आएगा, और एक रे जो है वो पॉइंट के से आएगा टू दी कैमरा स्टेशन, ठीक है। नाउ एट द बैक साइड यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक नेगेटिव प्लेट पे इमेज बन जाता है इस ऑब्जेक्ट का जो ए बी के ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और वो इमेज क्या होता है, वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और स्मॉल इन साइज होता है। सपोज दिस इज K1 A1 और यहाँ पे हमारे पास ये है फॉर एग्जाम्पल, लेट मी क्लियर इट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज B1। तो ये जो इमेज है इस ए बी के का, ये वी कैन से दैट रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉल इन साइज है, ठीक है। और ये जो इमेज बनता है दैट इज ऑन दी नेगेटिव प्लेट, ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट के ऊपर होता है। और पॉजिटिव प्लेट के ऊपर हमारे पास यहाँ पे इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का,
ऑब्जेक्ट का. सपोज दिस इज A2, this point is B2 and this point is K2. एंड देखें सेंटर ऑफ द कैमरा से या सेंटर ऑफ द लेंस ऑफ द कैमरा से टू द पॉजिटिव प्लेट, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं. एंड रिमेंबर फोकल लेंथ जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन फोटोग्रामेट्री. बिकॉज अब जब कैमरा से फोटोग्राफ लेते हैं तो ये उस कैमरा का स्पेसिफिकेशन होता है. बिकॉज हर कैमरा से आप जो फोटोग्राफ लेंगे वो डिफरेंट होंगे, उनका साइज डिफरेंट होगा, उनका मैग्निफिकेशन डिफरेंट होगा. ठीक है, तो फिर उसका स्केल भी डिफरेंट होता है. तो फोकल लेंथ जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि जिस कैमरा से आप फोटोग्राफ लेते हैं उसका फोकल लेंथ क्या है. सो फोकल लेंथ जो है दैट इज अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली द कैमरा कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट. मीन एक कैमरा जो है कितना स्ट्रांगली लाइट को डाइवर्ज या कन्वर्ज कर सकता है. ठीक है, और एक्चुअली कैमरा का जो फोकल लेंथ है ये मैग्निफिकेशन पे डिपेंड होता है. ठीक है, फोकल लेंथ जो है किसी कैमरा का या लेंस का दैट इज डिटरमाइंड व्हेन द लेंस इज फोकस्ड एट इंफिनिटी. मीन जब आप किसी कैमरा की लेंस को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फोकस कर लेना तो लेंस का जो फोकल लेंथ है दे टेल अस अबाउट द एंगल ऑफ व्यू कि कितना सीन वो कैप्चर कर रहा है और उसकी मैग्निफिकेशन कितना है. ठीक है, सो अगर किसी कैमरा का फोकल लेंथ लार्जर हो तो एंगल ऑफ व्यू जो है वो नैरो होता है और मैग्निफिकेशन हाइयर होता है. मीन इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज लार्ज then the angle of view will be narrow and the magnification will be higher. ठीक है, या the distance from the center of the camera to the positive plate that is called focal length. ठीक है, जिस तरह हमारे पास कैमराज होते हैं उनकी डिफरेंट मेगापिक्सल्स होते हैं ना, तो मेगापिक्सल जो है वो मैग्निफिकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी भी वो कैमराज की, तो वो फिर हम लिंक कर सकते हैं फोकल लेंथ के साथ. ठीक है, तो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि किसी भी कैमरा से आप फोटोग्राफ्स लेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ मस्ट होगा. ठीक है, एंड दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस टू द पॉजिटिव प्लेट. ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है जिसके ऊपर जो इमेज होते हैं वो इन्वर्टेड होता है, रियल होते हैं, स्मॉल इन साइज होता है. और जो पॉजिटिव प्लेट है उसमें जो इमेज होते हैं वो रियल होता है, स्ट्रेट होता है, मीन इरेक्ट होता है और स्मॉल इन साइज होता है. ठीक है, अब देखें हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ओ ए एंड बी, और दूसरा ट्राइंगल है ओ बी एंड के, और दो ट्राइंगल यहां पे है ओ A2 B2 एंड ओ B2 K2. तो आप देखें फ्रॉम ट्राइंगल ओ A2 B2 एंड ट्राइंगल ओ ए एंड बी, ये दोनों हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनकी जो रेस्पेक्टिव साइड्स की रेशोज हैं वो सेम होगा. सो वी कैन से दैट OA2 डिवाइड बाय OA, it will be equal to OB2 divided by OB, and it will be equal to A2B2 divided by AB. ठीक है, एक ये इक्वेशन हमारे पास आ गया. दूसरा जो हमारे पास ट्राइंगल्स है ट्राइंगल OB2 एंड K2 एंड ट्राइंगल OB एंड K. ठीक है, OB2K2 एंड OBK, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी जो रिस्पेक्टिव रेशोज हैं ये सेम होंगे. सो वी कैन से दैट OK2 is equal to OK is equal to OB2 divided by OB is equal to B2 K2 divided by BK. क्लियर, ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास. अब देखिए दोनों इक्वेशन में
OB2 डिवाइड बाई OB जो है ये कॉमन है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं OB2 डिवाइड बाई OB इज इक्वल टू A2B2 A2B2 डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू B2K2 डिवाइड बाई BK। इन दोनों इक्वेशंस में OB2 डिवाइड बाई OB जो है वो इसकी भी बराबर है और इसकी भी बराबर है, तो तीनों को हम इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये y क्या है, दैट इज द ग्राउंड या द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन AB। x क्या है, दैट इज द एक्चुअल और ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन BK। अब फोटोग्राफ में ये AB जो है ये A2B2 रिप्रेजेंट हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज स्मॉल x is the photographic distance between these 2 points. Small y is the photographic distance between B2 K2। मीन ये BK जो है ये एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस है। ठीक है, तो सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया। फॉर एग्जांपल ग्राउंड पे हमारे पास जो x डिस्टेंस है ये फोटोग्राफ में हमारे पास ये स्मॉल x नजर आ रहा है, और ये जो ग्राउंड पे हमारे पास एक्चुअल कैपिटल Y डिस्टेंस है फोटोग्राफ के ऊपर ये हमारे पास स्मॉल y नजर आ रहा है। तो आप देखें ये OB2 ये क्या है, मीन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैमरा टू द पॉजिटिव प्लेट, इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। OB क्या है, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा टू द पॉइंट्स जो सेम प्लेन्स में है, तो दैट विल बी इसके बराबर है ना, मीन सॉरी लेट मी चेंज द कलर की नजर आ जाए। सो देखें F डिवाइड बाय D इज इक्वल टू ये A2B2 क्या है, दैट इज द फोटोग्राफिक डिस्टेंस बिटवीन AB मीन स्मॉल y डिवाइड बाय ये कैपिटल AB क्या है, दैट इज द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन AB। B2K2 क्या है, दैट इज द फोटोग्राफिक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन B एंड K पॉइंट मीन स्मॉल x, और कैपिटल B के क्या है, दैट इज द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन B एंड K मीन ये कैपिटल X हो जाएगा। सो देखिए हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया, दैट focal length of the camera divided by distance of the camera from the object is equal to the distance on photograph divided by the distance on the ground is equal to the vertical distance on the photograph divided by the vertical distance on the ground, and this is called what, स्केल ऑफ द फोटोग्राफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फोटोग्रामेट्री में। जब भी आप फोटोग्राफ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने उसका स्केल फाइंड करना होगा, एंड स्केल ऑफ द फोटोग्राफ विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑन द फोटो डिवाइड बाय द ग्राउंड डिस्टेंस, एंड दैट विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ द कैमरा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा देखिए अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है, इसका एक्चुअल हाइट या एक टावर है, एक्चुअल हाइट इसका 120 मीटर है। तो जब आप इसका फोटोग्राफ लेंगे तो पॉजिटिव प्लेट पे आपके पास जो फोटोग्राफ बनेगा, सपोज ये हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर है, तो दिस इज द फोटोग्राफिक डिस्टेंस एंड दिस इज द ग्राउंड डिस्टेंस, दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस एंड दिस इज द फोटोग्राफिक डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल कैमरा का जो फोकल लेंथ है वो सपोज 152.4 मिलीमीटर है। ठीक है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट के ये ये ऑब्जेक्ट जो है ये कैमरा से कितने डिस्टेंस पे है। सो दैट विल बी अ काइंड ऑफ सर्वे इंफॉर्मेशन व्हिच वी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फोटोग्राफ। मीन हमारे पास ये फोटोग्राफ होगा ना,
फोटोग्राफ में इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 3.2 सेंटीमीटर है, एक्चुअल हाइट उसका 120 मीटर है। जिस कैमरा से आपने फोटोग्राफ लिया हुआ है उसका फोकल लेंथ ये है, तो ये ऑब्जेक्ट कैमरा से कितने डिस्टेंस पे होगा? सो वी नो दैट focal length of the camera divided by distance of the object is equal to measurements on the photograph divided by the actual measurements on the ground। ठीक है, सो फोकल लेंथ जो है वो 152 मिलीमीटर है, तो इसको आप 1000 पे डिवाइड कर ले कि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एंड वी आर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस ऑन द फोटोग्राफ इज 3.2 सेंटीमीटर, तो इसको 100 पे डिवाइड कर लें, and the actual distance of the object is 120 meter। So if you do the calculation, you will get 571.5 meter। So that will be the distance of the camera from the object। ठीक है, so this was the terrestrial photogrammetry। अब हमारे पास है एरियल फोटोग्रामेट्री। मीन अगर ऊपर से हम किसी ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ लेते हैं, स्पेस से हम किसी ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ लेते हैं कि कैमरा का जो एक्सिस है वो अलोंग द ग्रेविटेशनल लाइन हो, इट विल बी कॉल्ड द एयर फोटोग्राफ्स। ठीक है, सो इफ द मैप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एयर फोटोग्राफ्स, दैट इज कॉल्ड एयर फोटोग्रामेट्री। एंड aerial photogrammetry is involved the use of photographs taken in a systematic manner। मीन अगर एक पूरी एरिया को आपने कवर करना है तो इस तरह प्रॉपरली आपने इस एरिया का फोटोग्राफ लेना होगा, फिर इस एरिया का फोटोग्राफ लेना होगा, फिर इस एरिया का, फिर इस तरह। ठीक है, मीन आपने इस तरह लेयर वाइज या स्ट्रेप वाइज ये एरिया सिस्टमेटिकली कवर करना है कि टोटल एरिया कवर हो जाए। तो ये हमारे पास एयर फोटोग्राफ्स हो जाएंगे। इससे फिर हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो एरियल फोटोग्रामेट्री होता है, एरियल फोटोग्रामेट्री होता है। ठीक है, अच्छा, नाउ जो एरियल फोटोग्रामेट्री है उसकी भी जिस तरह हमने हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री की स्केल डिस्कस की, इस तरह इसकी भी हमने स्केल फाइंड करना होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर ग्राउंड सरफेस के ऊपर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है, के पॉइंट है, यहाँ पे ये सपोज हमारे पास बी पॉइंट है, और यहाँ पे सपोज ये ए पॉइंट है। इन ऑल ऑफ दीज पॉइंट जो हैं फॉर एग्जांपल दीज आर ऑन द अर्थ सरफेस। तो अगर ऊपर से यहाँ से हम कैमरा यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, या सपोज कैमरा यहाँ पे है, यहाँ से हम फोटोग्राफ लेते हैं इस एरिया का, तो वो जो है वो ग्राउंड से सम हाइट पे होगा। इन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे कैमरा है, यहाँ से हम फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो कैमरा से यहाँ तक एक रे इस तरह होगा, एक रे जो है वो इस पॉइंट तक होगा, एक रे जो है वो इस पॉइंट तक होगा। नाउ फॉर एग्जांपल ये जिस एरिया का हम स्पेस से फोटोग्राफ ले रहे हैं, सपोज ये मीन सी लेवल से एच एलिवेशन पे है, और कैमरा जो है ये मीन सी लेवल से कितने हाइट पे है, या इसका जो एल्टीट्यूड है दैट इज कैपिटल एच। मीन कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द कैमरा विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, स्मॉल एच जो है दैट इज द हाइट ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव प्लेट होगा, यहाँ पे इस तरह एक पुटू बनेगा इस ग्राउंड फीचर्स का। तो सपोज ये हमारे पास K1 है, ये B1 पॉइंट है, और सपोज ये A1 पॉइंट है। तो एक्सेस से आई मीन सेंटर से पॉजिटिव प्लेट तक ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास फोकल लेंथ होता है। ठीक है, नाउ अगेन लेट O इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ पे कैमरा है। तो फ्रॉम ट्राइंगल O B1 K1 एंड O B एंड K, इन दो ट्राइंगल से we can write it that OK1 divided by OK is equal to OB1 divided by KB
सॉरी OB1 डिवाइड बाय OB इज इक्वल टू K1 B1 डिवाइड बाय KB। ये एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल से देखिए OA1 B1 एंड ट्राइंगल OB and K, इस ट्राइंगल से हमारे पास ये आ जाएगा कि OB1 डिवाइड बाय OB will be equal to OA1 divided by OA will be equal to B1 A1 divided by BA। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब देखिए दोनों इक्वेशन में OB1 डिवाइड बाई OB जो है ये कॉमन है, सो वी कैन राइट इट OB1 डिवाइड बाई OB इज इक्वल टू K1 B1 divided by KB is equal to B1 A1 divided by BA। Now see, for example, अगर ये x हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस है ऑन द ग्राउंड बिटवीन पॉइंट K एंड B, y जो है दैट इज एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड बिटवीन पॉइंट B एंड A। यहाँ पे जो स्मॉल y है ये पुटू के ऊपर डिस्टेंस होगा और स्मॉल x दैट इज द पुटू डिस्टेंस बिटवीन KB1। सो उन वैल्यूज को यहाँ पे अगर हम पुट कर लें, ये OB1 क्या है, मीन कैमरा से पॉजिटिव प्लेट तक ये क्या होता है हमारे पास, ये फोकल लेंथ होगा। OB क्या है, मीन कैमरा से ग्राउंड तक, दिस विल बी इक्वल टू elevation of the camera minus elevation of the ground. It is equal to K1B1, mean the horizontal distance on the photograph divided by the horizontal distance on the ground, and this is equal to the vertical distance on the photograph divided by the vertical distance on the ground. So ये हमारे पास बन जाता है जनरली कि F डिवाइड बाय elevation of the camera minus elevation of the ground, that is called scale of the vertical photograph, and it will be equal to distance on the photograph divided by distance on the ground। ठीक है, तो ये एरियल फोटोग्राफ का स्केल होगा हमारे पास। एंड रिमेंबर ये जो स्मॉल h है ना, दैट इज एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द मीन सी लेवल। सो अगर तीनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम एलिवेशन पे हो तो ये कांस्टेंट होगा, और अगर ये सपोज के डिफरेंट एलिवेशन पे है, बी डिफरेंट एलिवेशन पे है, ए डिफरेंट एलिवेशन पे है, तो फिर इसका हम क्या करते हैं, एवरेज एलिवेशन लेते हैं। मीन अगर इसमें अप्स एंड डाउन्स हो ना तो फिर हम एवरेज एलिवेशन लेते हैं। देन द स्केल विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ डिवाइड बाय एलिवेशन ऑफ कैमरा माइनस एवरेज एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड। ये फिर हमारे पास वर्टिकल फोटोग्राफ का स्केल होगा। एंड रिमेंबर फोटोग्रामेट्री के लिए हम ये जो कैमरा यूज करते हैं उसको पुटू theodolite कहते हैं। पुटू theodolite जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैमरा एंड theodolite एंड व्हिच इज यूज्ड फॉर टेकिंग द फोटोग्राफ्स एंड मेजरिंग द एंगल। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक इक्विपमेंट यूज्ड इन द फोटोग्राफ। सो ये हमारे पास वर्टिकल फोटोग्रामेट्री का स्केल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कैमरा है, ठीक है, सपोज ये मीन सी लेवल से 1600 मीटर हाइट पे है, कैमरा जो है वो मीन सी लेवल से 1600 मीटर हाइट पे है, और जिस एरिया का आप फोटोग्राफ ले रहे हैं सपोज वो मीन सी लेवल से 250 मीटर एलिवेशन पे है, और जिस कैमरा से आप फोटोग्राफ ले रहे हैं उसका जो फोकल लेंथ है फॉर एग्जांपल वो 15 सेंटीमीटर है, तो हम जो फोटोग्राफ लेंगे उसका स्केल क्या होगा। सो स्केल इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा 15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, डिवाइड बाय
elevation of the camera minus elevation of the ground, ठीक है. So you will get तकरीबन 1/9000. तो मतलब ये है कि अगर आपके पास ये ग्राउंड है जो मीन सी लेवल से 250 मीटर एलिवेशन पे है और आपका जो कैमरा है वो मीन सी लेवल से 1600 मीटर हाइट पे है और उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो इससे आप जो फोटोग्राफ लेंगे उसका स्केल 1/9000 होगा. मतलब यह है कि अगर फोटोग्राफ के ऊपर आपके पास 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो तो वो एक्चुअल ग्राउंड के 9000 सेंटीमीटर के बराबर होगा. ठीक है. या इस तरह भी हम कह सकते हैं, अक्सर हमारे पास कैमरा होता है, तो अगर आपके पास कैमरा अवेलेबल है उसका फोकल लेंथ गिवन होगा, दैट मस्ट बी गिवन, बिकॉज अगर कैमरा है तो उसका फोकल लेंथ होगा. तो सपोज आपके पास कैमरा अवेलेबल है, सपोज उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एंड यू वांट टू प्रिपेयर या यू वांट टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ अ स्केल 1/10,000, मीन 1/10,000 स्केल का फोटोग्राफ आप लेना चाहते हैं, तो कैमरा जो है वो ग्राउंड से कितने हाइट पे होगा, इन ग्राउंड से आप कितने हाइट पे कैमरा रखेंगे कि आपके पास 1/10,000 स्केल का फोटोग्राफ आ जाए. और फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड जो है ये मीन सी लेवल से 1800 मीटर एलिवेशन पे है. ग्राउंड जो है वो मीन सी लेवल से 1800 मीटर एलिवेशन पे है और कैमरा का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. अब हमने 1/10,000 का फोटोग्राफ लेना है, तो कैमरा कितने हाइट पे होने चाहिए. सो स्केल 1/10,000 इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, फोकल लेंथ डिवाइड बाय हाइट ऑफ द कैमरा माइनस हाइट ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम मीन सी लेवल. तो इसको आप सॉल्व कर लें. सो एच विल बी इक्वल टू 3800 मीटर. इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस कैमरा से जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो और ये जो ग्राउंड है मीन सी लेवल से 1800 मीटर पे, अगर इस कैमरा से इस ग्राउंड का आप 3800 मीटर एलिवेशन पे, या वी कैन से दैट ग्राउंड से कैमरा जो है 2000 मीटर पे, अगर इस ग्राउंड का आप फोटोग्राफ ले लें उसका स्केल 1/10,000 होगा. ठीक है. सो फोटोग्रामेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो स्केल होता है. ठीक है. सो स्केल ऑफ बोथ द हॉरिजॉन्टल फोटोग्रामेट्री एंड वर्टिकल फोटोग्रामेट्री इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑन द फोटोग्राफ टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. ठीक है. and these are some advantages of photogrammetry that the photogrammetry के जरिए जो है हम ग्रेटर स्पीड से काम कर सकते हैं, बिकॉज फोटोग्रामेट्री जो है दैट इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ द प्लान टेबलिंग. उसमें फील्ड वर्क ज्यादा होता है तो काम जो है वो स्लो होता है. फोटोग्रामेट्री के जरिए आप डायरेक्टली फोटोग्राफ्स ले लें और फिर ऑफिस में उसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है तो कम टाइम में आप ज्यादा सर्वे कर सकते हैं. डेट कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, जिस तरह हमने प्रीवियसली भी डिस्कस की कि जियोलॉजिकल, साइल, फॉरेस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल या ट्रैफिक प्लानिंग, ठीक है, उसके लिए हम फोटोग्रामेट्री यूज कर सकते हैं. सो जो यूजेस है वो एडवांटेजेस है. ठीक है. लेकिन पॉइंट ये है कि फोटोग्रामेट्री के लिए स्पेशलाइज्ड और स्किल पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं, बिकॉज आपने एक प्रॉपर डिस्टेंस से फोटोग्राफ लेना होता है. ठीक है. एलिवेशन को मीन कैमरा की एल्टीट्यूड को मेंटेन करना होता है, प्रॉपरली सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने फोटोग्राफ्स लेने होते हैं कि कोई एरिया जो है वो मिस ना हो जाए. ठीक है. तो ओवरलैपिंग प्रॉपरली उसमें आ जाए. सो उसके लिए स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड पीपल रिक्वायर्ड होते हैं. अच्छा, दैट कैन बी यू मोस्टली मेड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. जो सर्वे पाकिस्तान डिपार्टमेंट है ये फोटोग्रामेट्रिक सर्वे मोस्टली उनके अंडर होते हैं. ठीक है. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हमारे पास. सपोज इफ वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिस तरह हमने प्रीवियसली डिस्कस की ना कि अगर आप हम एक पॉइंट फोटोग्राफ लेते हैं सपोज, तो ये फोटोग्राफ है, इसकी एग्जैक्टली मिड में अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर ले तो ये वर्टिकल एक्सिस होता है और ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है. ठीक है. और सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास एक फोटोग्राफ है,
लेट मी ड्रॉ इट लार्जर स्केल। ठीक है, ये एक फोटोग्राफ है। सपोज ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है फोटोग्राफ के ऊपर ए और यहाँ पे एक पॉइंट है फोटोग्राफ के ऊपर बी। अब ये पॉइंट हमारे पास ग्राउंड के ऊपर भी होगा ना। सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। तो जब हम फोटोग्राफ लेते हैं इस एरिया का, फॉर एग्जांपल इस तरह हम फोटोग्राफ लेने, ठीक है, ऊपर कैमरा से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखें, ये ओरिजिन से ए पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन द फोटोग्राफ। ये जो है दैट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन फोटोग्राफ। सिमिलरली ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट बी का ऑन द फोटोग्राफ। ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट होगा फोटोग्राफ का ऑन द पॉइंट बी का ऑन द फोटोग्राफ। ठीक है, सिमिलरली जिस तरह ए की कोऑर्डिनेट्स है फोटोग्राफ के ऊपर, सिमिलरली ये ग्राउंड के ऊपर ए का एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, सिमिलरली बी का ग्राउंड के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, और ये जो है दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द फोटोग्राफ। नाउ from the previous discussion, we know that the distance on the photograph, the distance on the photograph divided by the actual distance on the ground, that is equal to scale of the photograph, and which is equal to focal length divided by height of the camera माइनस इलिवेशन ऑफ द ग्राउंड। सो सपोज अगर ये पॉइंट ग्राउंड के ऊपर यहाँ है तो इसका मीन सी लेवल से इलिवेशन फॉर एग्जांपल एच ए है। सो इसको इस दो को हम अगर इक्वेट करके सॉल्व कर लें, सो वी विल गेट द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट या द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू एच माइनस एच ए multiplied by xa divided by f. That will be the x coordinate of point A on the ground. Similarly, the y coordinate of point A on the ground will be equal to ha minus h mean height of the camera minus elevation of point A divided by focal length multiplied by the y coordinate of A on photograph। ठीक है, तो ये ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सिमिलरली B के जो हैं it will be equal to xb will be equal to height of camera minus, for example, hb is the elevation of point B and xb is the x coordinate of point B on the photograph divided by focal length. Similarly, yb mean the y coordinate of point B on the ground will be equal to height of camera minus elevation of point B, coordinate of B on the photograph divided by focal length। ठीक है, सो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं फोटोग्राफ के ऊपर, तो फोटोग्राफ में उनकी कोऑर्डिनेट्स ये होंगे जिस कैमरा से आपने लिया हुआ है। सपोज कैमरा का फोकल लेंथ f है, कैमरा का मीन सी लेवल से एलिवेशन h है, पॉइंट ए का एलिवेशन एच ए है और पॉइंट बी का एलिवेशन एच बी है। सो ये जो है ये हमारे पास उन पॉइंट्स की ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ऑन द ग्राउंड मीन ग्राउंड की ऊपर इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये कितना होगा, दैट इज ए बी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी होल स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स
the actual ground distance between the 2 points which is extracted from the photographs. मीन अगर आपके पास फोटोग्राफ अवेलेबल है, फोटोग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, तो इस तरह आप फोटोग्राफ के एक्सेस ड्रॉ करके दोनों पॉइंट्स की फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स मेजर कर लें, फोकल लेंथ और ये एलिवेशंस आपको गिवन होंगे, तो ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लें और इस इक्वेशन के जरिए आप दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। नाउ एरियल फोटोग्राफ्स जब हम लेते हैं तो इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट यू हैव टू डू द फ्लाइंग, मीन स्पेस से आपने फोटोग्राफ्स लेना है, तो आपने स्पेस में जाने के लिए फ्लाइंग करना होगा एरोप्लेन के जरिए, या आजकल जो है ड्रोन कैमरास भी अवेलेबल है, इसके साथ कैमरास अटैच करते हैं, तो ऊपर से फिर आपने फोटोग्राफी करनी होती है। मीन जिस एरिया में आप इंटरेस्टेड है, जिस एरिया की सर्वे में इंटरेस्टेड है, तो उसकी फोटोग्राफ्स लेने होंगे। अगेन फोटोग्राफ्स के लिए हमें ग्राउंड कंट्रोल रिक्वायर्ड होते हैं, रेफरेंस पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एंड वंस वी गेट द फोटोग्राफ्स, फिर फोटोग्राफ्स से जो है हम मैप्स या प्लान प्रिपेयर करते हैं। मीन फिर हमारा ऑफिस वर्क होता है ना, कि हम पॉइंट्स की दरमियान डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर ले, उनकी कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर ले और फिर उससे जो है मैप्स की कंपाइलेशन कर ले। ठीक है। और एरियल फोटोग्रामेट्री के लिए ऑब्वियसली एक एरोप्लेन रिक्वायर्ड होगा, एक ड्रोन रिक्वायर्ड होगा, जिसकी हेल्प से जो है हम स्पेस से फोटोग्राफ्स ले सकें, एंड प्रॉपरली एक सोफिस्टिकेटेड कैमरा रिक्वायर्ड होगा, जिसका मैग्निफिकेशन पावर या मेगापिक्सल या फोकल लेंथ जो है जितना पॉसिबल हो उतना क्लियर होना चाहिए और लॉन्गर होना चाहिए, एक्सेसरीज होनी चाहिए। एक क्या फोटोग्राफ्स लेते हैं, फिर उससे किस तरह मेजरमेंट्स करेंगे, उसके लिए जो डिफरेंट प्लॉटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। So as we have discussed the scales of the photographs, so generally we can say that scale of a photograph will be equal to distance on the photograph divided by actual distance on the ground. ठीक है, both if it is in the horizontal plane or in the vertical plane, and it is equal to focal length divided by distance. This is for the terrestrial photogrammetry or for the ground photogrammetry, and for the vertical photogrammetry the distance on the photograph divided by the distance on the ground is equal to the focal length of the camera divided by elevation of the camera minus elevation of the ground. This is for the एरियल फोटोग्रामेट्री या वर्टिकल फोटोग्रामेट्री। ठीक है, तो ये हमारे पास स्केल होता है। Now the scale of the photograph is the ratio between the distance measured on the photograph and the ground distance. ठीक है, तो एक और टर्म हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, that is the distortion. So let's understand this one. See, अगर हमारे पास एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पोल है या एक टावर है या एक बिल्डिंग है, तो अगर एग्जैक्टली ऊपर से हम इसका फोटोग्राफ ले लें, तो टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ये दोनों कोइंसाइड होंगे, तो फोटोग्राफ की ऊपर हमारे पास जस्ट एक पॉइंट आएगा, बिकॉज टॉप और बॉटम जो है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होंगे। So then we cannot be able to find out the height of this object. So for that purposes, you have to determine the height of an object. आप डायरेक्टली उसकी ऊपर से फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते, बिकॉज अगर एग्जैक्टली आप ऊपर से फोटोग्राफ ले लें तो दोनों पॉइंट्स जो है टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, आपके पास जस्ट एक पॉइंट आ जाएगा ना, दोनों कोइंसाइड होंगे, तो आपके पास जो है कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा अबाउट द हाइट डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा साइड से आपने फोटोग्राफ लेना होगा। देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग है या टावर है या चिमनी है, ठीक है, या ट्री है, पोल है, ये जो है सपोज इसका टॉप पॉइंट है ए, और ए डैश जो है फॉर एग्जांपल इसका बॉटम पॉइंट है। सपोज ये ए डैश ये क्या होगा, दैट विल बी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब यहां से अगर हम फोटोग्राफ ले लें, यहां से एक फोटोग्राफ ले ले, ओ इज द
ऑब्जर्वेशन पॉइंट या यहाँ पे कैमरा है, तो यहाँ पे एक रे जाएगा टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट तक और एक रे जो है वो जाएगा बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव प्लेट होगा उसकी ऊपर फोटोग्राफ बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो दो पॉइंट्स है ए पॉइंट और ए डैश, वो फोटोग्राफ के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये ए पॉइंट होगा और यहाँ पे हमारे पास ये ए डैश पॉइंट होगा। और ये ए डैश जो है स्मॉल ए डैश, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, नाउ इफ वी ड्रॉ एक्सेस ऑफ द फोटोग्राफ, देखिए ये जो कैमरा का एक्सेस है इस तरह ग्राउंड की तरफ ये। नाउ सी अगेन फॉर एग्जांपल इफ वी एज्यूम दिस ग्राउंड सरफेस इज द डेटम लाइन, तो ग्राउंड से कैमरा तक ये जो हाइट है हमारे पास, that is suppose represented by capital H. In capital H is the height of the camera from the ground. And remember, ground is assumed as a datum surface. Later on, we will convert it into elevation of camera from mean sea level. But for the time being, we are assuming कि ground surface जो है ये हमारे पास datum है। तो datum से कैमरा तक ये जो डिस्टेंस है सपोज दैट इज कैपिटल H, और कैमरा से पॉजिटिव प्लेट तक ये जो डिस्टेंस होते हैं दैट वी कॉल फोकल लेंथ। ठीक है, नाउ ये जो लाइन है ये हमारे पास सपोज ओके, ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ द कैमरा है। सो एक्सिस ऑफ कैमरा से टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग या टू टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास आर डिस्टेंस है और ये जो ए डैश पॉइंट है, सो एक्सिस से टू द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग अगेन ये भी आर डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए अगर हम फोटोग्राफ का इस तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास फोटोग्राफ के ऊपर आ जाएगा। देखिए ये फोटोग्राफ यहाँ पे सी इस तरह ये वर्टिकल एक्सिस है फोटोग्राफ में, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है ए पॉइंट है और ये हमारे पास ए डैश पॉइंट है और ये स्मॉल ए डैश जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द फोटोग्राफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो ओरिजिन है हमारे पास, सपोज दिस इज इसको अगर हम एक नाम दे दे के डैश, स्मॉल के डैश। ठीक है, सपोज दिस इज के, दिस इज के वन पॉइंट और ये जो रेफरेंस ओरिजिन पॉइंट है दैट इज के डैश। ठीक है, नाउ सी ये ओरिजिन से ए डैश तक ये जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल वी कॉल्ड इट स्मॉल आर डैश, और ओरिजिन से ये ए पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है वी कॉल्ड इट आर, कि ये जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है ना ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है दैट इज स्मॉल आर, और ये बॉटम ऑफ द बिल्डिंग जो है ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, सपोज दैट इज आर डैश। अब यहां पे देखें हमारे पास दो ट्राइंगल्स हम कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल ओ ए डैश एंड ए सॉरी ओ के डैश, ओ के डैश ए एंड ओ के वन ए। यहाँ पे देखिए मैं इसको लाइट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओ के डैश एंड ए, एक ये ट्राइंगल होगा और एक हमारे पास ये ट्राइंगल होगा ओ के वन ए, ये दोनों जो है ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सो देयर रिस्पेक्टिव रेशियोज जो है वो सेम होंगे। सो वी कैन से दैट ओ के डैश डिवाइड बाय OK1 will be equal to K dash A divided by K1 A। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। अच्छा, नाउ OK डैश जो है ये फोकल लेंथ के बराबर है। ठीक है, ये OK डैश जो है
ये फोकल लेंथ के बराबर है। और O से K1 तक ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू h minus h in height of the camera from the ground minus height of the object, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू k डैश a, मीन फोटोग्राफ पे टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, इसको हम क्या कहते हैं, सपोज r, स्मॉल r कहते हैं। और k1a क्या है, दैट इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैमरा ऑन द ग्राउंड, सपोज इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दिस यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्मॉल r इज इक्वल टू एफ आर डिवाइड बाय h माइनस h, ठीक है। नाउ दूसरा एक ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे देखें ओ के डैश ए डैश, एक ये ट्राइंगल ओ के एंड ए डैश, एक ये ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। मीन एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये ओ के एंड ए डैश, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। सो सी लेट मी क्लियर सम, from these two triangle, again clearly focus on the diagram. From triangle O K dash A dash and O K A dash, ठीक है। एक ये स्मॉल ट्राइंगल है हमारे पास और एक ये लार्ज ट्राइंगल है। वी कैन से दैट O K dash डिवाइड बाय OK is equal to K dash A dash डिवाइड बाय K A dash, ठीक है। मीन ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है डिवाइड बाय द टोटल दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस बेस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस बेस डिस्टेंस। नाउ ये ओ के डैश जो है ये फोकल लेंथ के बराबर है और ये ओ के क्या है, दैट इज द height of the camera from the ground which we have assumed the datum is equal to k dash a dash क्या है, that is the distance of the bottom of the object from the origin on the photograph, इसको हमने क्या कहा हुआ है r dash डिवाइड बाय ये k a dash क्या है, that is the bottom of the object from the axis of the camera on the ground, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि r डैश इज इक्वल टू एफ आर डिवाइड बाय h। अच्छा अब देखें ये फोटोग्राफ के ऊपर जो ए डैश है ये क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन फोटोग्राफ। मीन फोटोग्राफ के ऊपर हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ना, that is representing the height of this object. So इसको हम क्या कहते हैं, इसको डिस्टॉर्शन हाइट कहते हैं, इसको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको रिलीफ हाइट कहते हैं या इसको डिस्टॉर्शन हाइट कहते हैं। मीन एनी डिस्प्लेसमेंट on the photograph which represent height of the object and the ground is called relief distance. मीन ये जो फोटोग्राफ के ऊपर ये डिस्प्लेसमेंट है ना दो पॉइंट्स के दरमियान, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस ऑब्जेक्ट के हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द डिस्टॉर्शन हाइट या दैट इज कॉल्ड द रिलीफ हाइट या दैट इज कॉल्ड द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा, देखें अगर ओरिजिन से टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक r डिस्टेंस है और ओरिजिन से बॉटम ऑफ द बिल्डिंग तक r डैश डिस्टेंस है, तो डिस्टॉर्शन क्या होगा r माइनस r डैश, इस तरह हो जाएगा। सो डिस्टॉर्शन इज इक्वल टू r माइनस r डैश एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ आर डिवाइड बाय h माइनस h is sorry minus f r
डिवाइड बाय एच। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, मीन एलसीएम ले ले इसका, एच इंटू एच माइनस एच, इसका एलसीएम ले लें। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ आर एच माइनस एफ आर इंटू एच माइनस एच। ठीक है, मीन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो अब देखिए यहाँ पे करते हैं। अच्छा, दिस डिस्टॉर्शन विल बी इक्वल टू एफ आर एच माइनस एफ आर एच माइनस प्लस एफ आर स्मॉल एच डिवाइड बाय एच इंटू एच माइनस एच। ठीक है, नाउ डिस्टॉर्शन या रिलीफ डिस्प्लेसमेंट that will be equal to, मीन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, that will be equal to एफ आर एच डिवाइड बाय एच इंटू दिस वन। नाउ सी, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ ले लें, किसी ऑब्जेक्ट का जब आप फोटोग्राफ ले लें तो फोटोग्राफ के ऊपर वो जो डिस्प्लेसमेंट उसका हाइट रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो ये डिस्टॉर्शन होगा ऑन द फोटोग्राफ। एफ जो है कैमरा का फोकल लेंथ है, आर जो है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैमरा, कैपिटल एच जो है ये हाइट ऑफ द कैमरा है ग्राउंड से, स्मॉल एच जो है ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अननोन है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस तरह भी फर्दरली देखें, ये d इज इक्वल टू सी एफ आर डिवाइड बाय एच माइनस एच, मीन ये एफ आर डिवाइड बाय एच माइनस एच ये किसके बराबर है, ये स्मॉल आर के बराबर है ना। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आर एच डिवाइड बाय एच। तो अब ये बेसिक इक्वेशन हो गया हमारे पास, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया कि डिस्टॉर्शन हाइट इज इक्वल टू द distance of the top of the object from the axis multiplied by height of the object divided by height of the camera। ठीक है, और आप अगर डेटम जो है आप मीन सी लेवल को लेते हैं, अगर डेटम जो है आप मीन सी लेवल को ले रहे हैं, देन द डिस्टॉर्शन हाइट विल बी इक्वल टू आर एच, रिमेंबर दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय elevation of the camera minus average elevation of the ground जो बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है इसको माइंड में रखें। डिस्टॉर्शन हाइट या रिलीफ हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये फोटोग्राफ में गिवन होगा, आर जो है ये भी फोटोग्राफ में गिवन होगा, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द एक्सेस। एच नॉट जो है ये ऑब्जेक्ट का हाइट है जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। कैपिटल एच जो है दैट इज द एलिवेशन ऑफ द कैमरा फ्रॉम मीन सी लेवल, और ये एच एवरेज जो है दैट इज द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम मीन सी लेवल। अगर डेटम जो है आप मीन सी लेवल को लेते हैं तो फिर ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, सी एक सिंपल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका हमने फोटोग्राफ लिया हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट का जब आप फोटोग्राफ लेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या पॉजिटिव प्लेट पे ये जो होगा दैट विल बी दी, सपोज अगर ये टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो फोटोग्राफ के ऊपर ये स्मॉल ए होगा और ये स्मॉल बी होगा। ठीक है, नाउ जिस कैमरा से हमने फोटोग्राफ लिया हुआ है उस कैमरा का जो फोकल लेंथ है
वो 152.4 मिलीमीटर है, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है इसका जो ग्राउंड है ये मीन सी लेवल से ये फॉर एग्जांपल कुछ एलिवेशन पे है 553 मीटर, 553 मीटर एलिवेशन पे है। कैमरा जो है वो मीन सी लेवल से 1000 मीटर एलिवेशन पे है, ठीक है। अब हमने ये फोटोग्राफ लिया हुआ है, तो देखें फोटोग्राफ आपके पास इस तरह आएगा। ये फोटोग्राफ का वाई एक्सिस है, ये फोटोग्राफ का एक्स एक्सिस है। तो ये सपोज ये हमें डिस्टॉर्शन हाइट दे रहा है, ये रिलीफ हाइट हमें दे रहा है, या ये बिल्डिंग का टॉप पॉइंट है और ये बिल्डिंग का बॉटम पॉइंट है। तो सपोज एक्स एक्सिस से ये जो बॉटम पॉइंट है ये 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और जो टॉप पॉइंट है ये एक्सिस से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो ये ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा, या बिल्डिंग का ये जो हाइट है ये कितना होगा। सो वी नो दैट डिस्टॉर्शन हाइट इज इक्वल टू आर एच नॉट मीन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय एलिवेशन ऑफ कैमरा माइनस एवरेज एलिवेशन ऑफ ग्राउंड। तो डिस्टॉर्शन क्या होता है, दैट इज दिस डिस्प्लेसमेंट विच इज 8 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। उसको 100 पे डिवाइड कर ले कि मीटर में कन्वर्ट हो जाए, इज इक्वल टू आर। आर क्या है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस। ये 8 सेंटीमीटर है ना, तो इसको 100 पे डिवाइड कर ले कि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, एच नॉट हमने फाइंड करना है, डिवाइड बाय हाइट ऑफ द कैमरा जो है मीन सी लेवल से वो 1800 मीटर है, माइनस एवरेज एलिवेशन जो है बिल्डिंग के ग्राउंड का वो 553 मीटर है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें, सो यू विल गेट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू तकरीबन 55.8 मीटर आ जाएगा। So that is the application of the distortion height or relief displacement in the photograph for the determination of height of an object. ठीक है। So this was all about the basic concept of photogrammetry, terrestrial photogrammetry and aerial photogrammetry. And we have discussed the scales of the horizontal photographs and vertical photographs, and also we have discussed the distortion height। ठीक है, कि अगर आपके पास एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट का या एक हाई ऑब्जेक्ट का एरियल फोटोग्राफ गिवन है, तो उससे आप ऑब्जेक्ट का हाइट किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है।